Good morning students, I am Namita Seth, welcomes you in BBVN online classes, and we were discussing about the chapter The Rat Trap, which was written by Salma Lagerlof for the class 12 from the book Flamingo. So dear students, we have already discussed that here the main protagonist of the chapter, that is the paddler or the rat trapper, he was actually who was actually continuously comparing the world to the rat trap and the luxurious things like the food and clothes and the other daily needs which makes us comfortable to bait. Okay, and then actually he himself, after stealing the 30 kroner from the crofter's house, he went to the forest, and there he introspected himself that he was already caught in the world trap. Okay, as which he was comparing to rat trap. Okay, so he was caught in that rat trap, and then he was very feeling with a very gloomy feeling he was having, and then he heard the voices of hammer tumbling, and then he went to the Ramas Jaw Iron Works, and then we saw about we have discussed about the works at Ramas Jaw Iron Works. Now let's see what happened when he went there. The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. Now who is intruder? Intruder is a person who is not invited. Okay, जिसको आपने invite नहीं किया और वो आ जाते हैं, that is intruder. So ब्लैकस्मिथ ने एकदम से उसकी झलक देखी और कैजुअली, मतलब ही वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज दैट हु इज देयर, बिकॉज दैट वॉज एक्चुअली द विंटर्स लेट evening time, and many of the strangers, they used to came in the iron works for warmth actually, because big furnaces were there, so for warmth they used to come in the iron works. So actually they were not at all surprised that who is that intruder. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, red, and with a bunch of rat traps dangling on his chest. So actually उनको बिल्कुल भी नहीं लगा कि कौन सा इंसान है क्या, मतलब they were not alarmed, they were not shocked by seeing him. और वो रेड ट्रैपर जो है काफ़ी अजीब सा दिख रहा था, बड़ी बड़ी सी उसकी दाढ़ी थी, काफ़ी गंदा सा था, रेड यानी कि फटे पुराने से कपड़े थे उसके, और कुछ एक गुच्छा रेड ट्रैप का, चूहे के पिंजरों का कुछ गुच्छा उसने अपने चेस्ट पे डेंगल्ड यानी लटका रखा था. ठीक है, डेंगल करना यानी सर्कल करके उसको लटका लेना किसी चीज़ से. तो he actually dangled those rat traps. He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. So जो उसने मतलब परमिशन मांगी कि क्या वो यहाँ रह सकता है, तो जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था उसने अपना सिर हिलाया. हॉटी मीन्स प्राउड, एंड कंसेंट मीन्स क्या होता है, एग्रीमेंट. तो उसने बड़े प्राउड में एक एग्रीमेंट दिया कि ठीक है आप रह सकते हैं, और मतलब उसको कोई भी सिंगल वर्ड ऑनर नहीं करा, कि मतलब उसको कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ उसने अपना सिर हिलाया और उसको इजाज़त दे दी. द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग. अब ये जो ट्रैम्प था, ये जो हमारा मेन जो प्रोटोगनिस्ट है, इसने मतलब कुछ भी नहीं कहा. एनीथिंग ईदर. ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप. तो उसने भी कुछ नहीं बोला, बिकॉज उसने किसी से बात करना तो मतलब आया नहीं था वो किसी से बात करने के लिए. उसको सिर्फ क्या चाहिए था, उसको वार्मथ चाहिए थी, और सिर्फ उसे रात गुजारने के लिए कोई जगह चाहिए थी. In those days, the Ramas Jaw Iron Mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. So उस समय में जो रामस जो आयरन मिल का जो ओनर था, वो बहुत प्रोमिनेंट मीन्स वेरी इम्पॉर्टेंट है ना, तो बहुत फेमस कह सकते हैं उसे, बहुत फेमस आयरन मास्टर था, जिसका मेन बहुत बड़ा एक एम्बिशन मतलब एक गोल था, एक सपना था कि वो बेस्ट क्वालिटी आयरन जो है वो मार्केट तक पहुँचाए. He watched both night and day to see that work was done as well as possible. तो वो दिन रात ये देखता रहता था कि उसके जो आयरन वर्क्स में जो काम हो रहा है वो मतलब अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा, गुड क्वालिटी ऑफ आयरन बन रहा है या नहीं बन रहा, जिससे कि वो उसको गुड क्वालिटी ऑफ आयरन जो है वो लोगों तक पहुंचा सके. एंड एट दिस वेरी मोमेंट
he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. So उसी मोमेंट पे जब हमारा ये जो मेन ट्रैम्प है या जो मेन प्रोटोगोनिस्ट पैडलर जो है जब वहाँ सोने के लिए आया है, उसी मोमेंट जो है वहाँ का जो आयरन मास्टर है वो एक्चुअली आया है फर्नेस पे, फोर्ज मतलब फर्नेस, तो वहाँ पर वो आया है नाइट राउंड लगाने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए कि सारा काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin. तो मतलब सबसे पहले आयरन मास्टर ने एंटर होते ही क्या देखा, एक लंबा सा रैगामुफिन. रैगामुफिन क्या होता है, दैट इज वियरिंग रैग्स, यानी गंदे से कपड़े, मतलब जो फटे हुए से कपड़े जो हैं गंदे से, वो पहना हुआ एक लंबा सा आदमी. हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वैट रैग्स. तो वो एक्चुअली अपने आप को मतलब इस तरह से फर्नेस के पास में, हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर पैडलर की बात कर रहे हैं जो रैट ट्रैपर है. तो वो एक्चुअली इतना ज़्यादा क्लोज फर्नेस की जा रहा था क्योंकि दिसंबर की बहुत ठंडी रातें थी, तो उसे क्या फर्नेस से, भट्टी से क्या मिल रही थी, वार्मथ मिल रही थी, गर्माहट मिल रही थी. तो वो उसके बड़ा पास में जाया जा रहा था और उसकी जो मतलब फॉर्ज की जो गर्माहट है, जो स्टीम है, वो ऐसा लग रहा था कि मतलब उसके रैक से, उसके जो फटे पुराने कपड़े हैं उसके अंदर से उसकी स्टीम निकल जा रही है, उस तक पहुंच रही है. ठीक है. द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ हु हैड हार्डली डेन्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर. तो आयरन मास्टर ने मतलब है ना कुछ भी फॉलो नहीं किया. ब्लैक स्मिथ ने एक्चुअली उसको अलाउ किया था ना पैडलर को सोने के लिए. तो मतलब उसने डीन्ड मतलब क्या होता है, ऑलरेडी ही डिड नॉट बॉदर्ड, है ना. उसने मतलब स्ट्रेंजर की तरफ देखा और उसने मतलब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा कि कौन है, कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा. सिर्फ उसने ब्लैक स्मिथ जो हमारा उसका जो था आयरन मास्टर, उसने ब्लैक स्मिथ की तरफ देखा एंड दैट्स ऑल. He walked close up to him. अब वो उसके काफ़ी करीब गया उस स्ट्रेंजर के. Looked him over very carefully. अब उसे बड़ा ध्यान से देख रहा है. Then tore off his slouch. और फिर उसने क्या करा, उसका जो स्लाउच है उसे क्या करा, फाड़ दिया. ठीक है. Hat to get a better view of his face. तो उसके जो स्लाउच हैट यानी वो अपना जो हैट है ना वो अपने फेस पर ढक के सो रहा था, तिरछा मतलब रख के सो रहा था. तो जो ढका हुआ उसका फेस था हैट से, उसने उसको हटाया उस हैट को और उसके फेस को बहुत ध्यान से देखने लगा. बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील्स वुल्फ, ही सेड. और ऑब्वियसली व्हाट ही सेड कि अरे ऑफ कोर्स मतलब ये तो नील्स वुल्फ है, यानी उसने ऐसा उस इंसान को बताया स्ट्रेंजर को जैसे कि वो उसे जानता है, उसका नाम लिया है, तो नील्स वुल्फ है. ही सेड हाउ यू डू लुक. तो उसने कहा तुम कैसे दिखने लग गए हो नील्स. The man with the rat traps had never before seen the iron master at Ramsjo and did not even know what his name was. तो जो मैन है, जो पैडलर है, वो रैट मतलब अपने रैट ट्रैप्स के साथ में उसने कभी भी मतलब उस इंसान को देखा ही नहीं, आयरन मास्टर को. और वो मतलब जो राम्सजो में आया था और उसको कभी नहीं देखा और उसको उसका नाम भी नहीं पता था कि कौन है नील्स वुल्फ, ये किसके बारे में बात कर रहा है और ये आयरन मास्टर कौन है, इसका क्या नाम है, उसे कुछ नहीं पता था. बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्विंटेंस ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रॉनर. तो उसने बोला कि उसने यही सोचा कि अगर एक इतना बड़ा इंसान, इतना रिच इंसान अगर मुझे कुछ इंट्रोडक्शन दे रहा है, एक्विंटेंस क्या होता है, किसी को इंट्रोडक्शन देना, तो अगर मुझे पहचान रहा है वो, तो इसमें बुराई क्या है, ये मुझे कुछ क्रॉनर तो दे देगा, इतना बड़ा इंसान, इतना रिच है ये पर्सनैलिटी. देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस. डिसीव करना मतलब क्या होता है, धोखा देना, और अनडिसीव करना मतलब धोखा न देना. ठीक है. तो वो ये नहीं चाहता था कि वो सिर्फ किसी भी प्रकार के लिए इग्नोर करे या उसे कोई धोखा दे या मतलब उसे बताए कि नो एक्चुअली है ना मैं वो नहीं हूँ जिसको तुम पहचान रहे हो. उसने अगर उसे नील्स वुल्फ बोला तो वैसे तो फर्ज बनता था राइट ट्रैपर का कि वो बता दे उसे कि आई एम नॉट नील्स, लेकिन उसने सोचा कि अरे इसी बहाने कुछ ना कुछ मुझे पैसे का प्रॉफिट हो जाएगा, तो उसने भी उसको धोखा देने की ठान ली कि ठीक है भाई मतलब जो पहचान रहा है इसको गलत फहमी में ही रहने दो.
Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. अब वो क्या बोल रहा है, हाँ भगवान जानता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरे इतने हालात बिगड़ गए कि मैं मतलब कैसा हो गया. रेड ट्रैपर बोल रहा है. You should not have resigned from the regiment, said the Iron Master. Iron Master बोल रहे कि तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था. That was the mistake. If only I had still been in the services at the time, it never would have happened. तो बोल रहे कि अगर मैं यानी कि जो आयरन मास्टर है वो पहले किसी रेजिमेंट में किसी जो आर्मी टाइप्स में रह चुका होगा, तो बोल रहे कि अगर मैं सर्विस पे होता तो तुम्हें कभी ना रिजाइन नहीं करने देता. वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी. तो चलो अब तुम, उसको तो वो नील सॉफ्ट समझ रहा है कि रेजिमेंट में काम करता था, अब इसके बुरे दिन आ गए तो शायद इसकी स्थिति ऐसी हो गई है ना, ही वॉज हैविंग वेरी पैथेटिक कंडीशन. तो उसने बोला कि चलो अब तुम मेरे घर पे चलो. अब जो रेड ट्रैपर है वो भी बड़ा समझदार है, वो बोल रहा है कि अपने क्या चाहता है कि भाई पहचान, अगर ये मुझे नील सॉफ्ट समझ रहा है तो नील सॉफ्ट ही सही, कम से कम मुझे कुछ तो प्रॉफिट देगा, ये कुछ तो पैसे दे देगा. To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade. That however did not please the tramp. अब उसके साथ घर जाना और एक रेजिमेंटल कॉमरेड की तरह मतलब ट्रीट करा जाएगा उसको, है ना. कॉमरेड मतलब क्या होगा, फ्रेंड या कंपेनियन जिसे हम बोलते हैं. तो किसी रेजिमेंटल कंपेनियन की तरह उसे ट्रीट किया जाएगा. और मैनर क्या होता है, फार्म हाउस, ठीक है. तो जो मतलब किसी फार्म हाउस पे जाना और वहाँ पर मतलब एक अच्छा रेजिमेंटल फ्रेंड की तरह एक ऑनर लेना, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उसने पैडलर ने मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं आपके घर तो नहीं ही आ सकता हूँ. मैं मतलब बिकॉज उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तो हो सकता है वो फंस भी जाए. No, I could not think of it, he said, looking quite alarmed. अब वो quite surprisingly सोच रहा है कि मतलब इसके घर जाना पड़ेगा. उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा. He thought of the 30 kroner. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. अब उसे पता था कि 30 kroner तो उसने चुराए हुए हैं, और फिर वो अगर किसी अच्छे फेमस पर्सनालिटी के घर पे चला जाएगा तो वो अपने आप को कहाँ भेज रहा है, लायंस डैन में भेज रहा है, यानी कि एक शेर की गुफा में खुद ही जा रहा है. क्योंकि एक फेमस पर्सनालिटी, उसे पता चल गया कि एक तो ये नील सॉफ्ट नहीं है और दूसरा इसने चोरी की हुई है, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि वो फंस जाएगा. ओके. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. तो उसने तो सिर्फ ऐसे सोचा था कि मैं मतलब जो रात यहाँ बिताऊंगा और उसके बाद में इस फर्नेस के पास में, और उसके बाद में सुबह जो है यहाँ से अननोटिस्ड वे में. स्नीक अवे मतलब क्या होता है, बिना किसी को बताए हुए, अननोटिस्ड वे में मैं यहाँ से चला जाऊंगा. ठीक है. एज इनकॉस्पिशियसली, कॉस्पिशियसली मतलब क्या होता है, किसी को नोटिस करना, किसी पे ध्यान देना. तो बिना किसी के ध्यान के जो है मैं यहाँ से चला जाऊंगा. ओके. The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. अब आयरन मास्टर को लगा कि ये शायद मेरे पास इसलिए नहीं आना चाहता मेरे घर पे क्योंकि इसे अपने कपड़ों से शर्म आ रही है, इसकी कंडीशन से शर्म आ रही है, इसलिए ये नहीं चाहता है मेरे घर आना. Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there. तो उसने कहा कि प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ या मेरे घर में बहुत आलीशान घर है जो तुम्हारे लायक नहीं है, ऐसा मत सोचो. He said, Elizabeth is dead. As you may already have heard. तो वो अपनी वाइफ के बारे में बता रहा है आयरन मास्टर कि एलिजाबेथ, जैसे तुमने सुना ही होगा, एलिजाबेथ तो शी इज़ नो मोर. माई बॉयज़ आर अब्रॉड. और उनके जो बेटे हैं वो बाहर रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री. एंड देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ. तो सिर्फ जो है ना मेरी सबसे छोटी जो बेटी है वो और मैं जो है वो बस रहते हैं, बाकी हमारे घर में कोई नहीं है. वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस. तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे मैं और मेरी डॉटर कि हमारे पास क्रिसमस के लिए कोई कंपनी नहीं है, तो ये तो अच्छी बात है कि तुम मुझे मिल गए. नाउ कम अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प अस टू मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर. तो चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम जैसा इंसान मुझे मिला और मेरे साथ क्रिसमस पे चलो और मेरे क्रिसमस को ईजियर बनाओ कि हमने जो इतना सारा फूड बनाया है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए. But the stranger said no,
and no and again no, and the iron master saw that he must give in. तो आयरन जो स्ट्रेंजर था वो बिल्कुल भी राजी नहीं था कि नहीं जाना, मतलब नहीं जाना। फिर आयरन मास्टर ने गिव अप कर दिया उसको, फिर वो नहीं मना सका। It looks as though Captain Von Stele preferred to stay with you tonight. Stern storm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. So उसने बोला कि जो ब्लैक स्मिथ है उसको बोल रहा है आयरन मास्टर कि ऐसा लगता है कि आज कैप्टन वॉन स्टेले जो हैं वो तुम्हारे साथ रात बिताना चाहते हैं, ब्लैक स्मिथ। और ये कहते हुए उसने अपनी हील पे टर्न किया। ऑब्वियसली क्या होता है हील पे टर्न करना, यानी कि ये जो आर्मी से रिलेटेड जो मतलब नेवी ये क्रॉप से रिलेटेड जो भी ऑफिसर्स होते हैं ना, दे यूज टू टर्न ऑन द हील, है ना, मतलब कमांड देते हुए हील पे टर्न करते हैं ना, टर्न बैक करते हैं। तो उसने भी वैसा ही जो है वो वे उसने अपनाया और उसने बोला कि आज तो कैप्टन वॉन स्टेले, अब उसने क्या नाम दिया नील सॉल्व को, कैप्टन वॉन स्टेले, ठीक है। तो उसी नाम से वो वहाँ पर रेजिमेंट में जाना चाहता था। तो उसने बोला कि आज वो आपके साथ में वक्त बिताना चाहते हैं। But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last words. तो वो एकदम से हंसने लगा और फिर जाने लगा। तो ब्लैकस्मिथ ये जानता था कि अभी तक इन्होंने कोई भी लास्ट वर्ड नहीं बोले हैं, यानी हार नहीं मानी है, ये ज़रूर इनको अपने साथ लेके जाएंगे। It was not more than half an hour before they heard the sound of a carriage wheels outside the forge and a new guest come in, but this time it was not the iron master. आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा उन्होंने एक कैरेज ऑफ व्हील की यानी एक गाड़ी की आवाज़ सुनी। और गाड़ी मीन्स व्हील विद वी कैन से मतलब ऐसी गाड़ी हॉर्स के साथ में जो होती है ना, हॉर्स कैरेट होती है लाइक दिस, है ना। तो उस जो चैरियोट्स होते थे ना, पहले रथ बोलते थे इन्हें। तो कैरेज क्या होता है कि एक गाड़ी होती है और उसको कोई आगे चलाने वाला होता है, यानी एनिमल कैन बी देयर। सो 4 व्हील्स की होती है गाड़ी, ओके। सो ये जो कैरेज व्हील्स हैं वो आके रुके वहाँ पर फर्नेस के बाहर, और ये तो श्योर था कि इस बार आयरन मास्टर नहीं है। He had sent his daughter. अब आयरन मास्टर ने किसको भेजा है? अपनी डॉटर को भेजा है, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. तो आयरन मास्टर को बिलीव था कि उनकी जो डॉटर है उसके पास इन्फ्लुएंसिंग, परसुएट करना मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंस करना, किसी को प्रेरित करना, है ना। तो जो उनकी डॉटर है उनके पास ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पावर्स हैं, और वो जो रेड ट्रैपर है जिसको कि वो समझ रहे हैं, कैप्टन समझ रहे हैं, उसको मना के और ज़रूर वो अपने घर लेकर आ जाएगी। She entered followed by a valet carrying on his arm a big fur coat, और उसके एक्चुअली वो एक ना वैलेट के साथ आती है। वैलेट मतलब क्या, कौन है, सर्वेंट, ठीक है। तो एक सर्वेंट के साथ आती हैं, और उस सर्वेंट ने अपने हाथ पे एक बिग फर कोट मतलब लगा रखा है। वो किसका है, एक्चुअली उनकी डॉटर का है, ठीक है। तो सर्वेंट पीछे पीछे आ रहा है। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय, तो बड़ी मॉडेस्ट थी और क्वाइट शाय। मॉडेस्ट मतलब जेंटल, और काफ़ी शर्मा रही थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, तो सब कुछ वैसा ही था फर्नेस में जैसे कि इवनिंग टाइम पे था। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज एप्रेंटाइन्स, एप्रेंटाइन्स मतलब कौन होता है, फॉलोअर्स, ठीक है, जो उसके संगी साथी जो काम कर रहे थे, स्टिल सैट ऑन द बेंच एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। तो वैसे ही वो लोग अपना काम कर रहे थे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि आयरन मास्टर आया या रेड ट्रैपर जा रहा है, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। तो वो जैसे अपने इवनिंग का जो शेड्यूल था, स्कीड्यूल था, वो वैसे ही स्कीड्यूल अपना चला रहे हैं, और वैसे ही वो बेंच पे बैठकर अपने जो चारकोल जो है, जो फर्नेस में ग्लो हो रहा है यानी चमक रहा है, उसको वो सारा काम अपना जो स्मेल्टिंग का है वो सारा काम कर रहे हैं, ओके। व्हेन द आयरन मास्टर daughters approached, okay, into the ironworks. So this is it for today, and we'll study the next remaining part of the chapter in the next video. Till then, happy learning.